Hello dear friends, so today we are going to discuss very important topic and very easy topic, that is 2.14 combination of capacitor. When you were in 9th or 10th, you might have studied combination of resistors, and you are already aware that possible combinations of resistors are series combination or parallel combination, and the third one is both of them. So if you know series and parallel combination, तो उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. तो कल हमने जो बात की थी, इफ यू रिमेंबर, देन यहाँ पे हम C की जो वैल्यू है वो ले सकते हैं Q by V. ओके, पूरे डिस्कशन में इसी इक्वेशन का यूज होने वाला है, C equals to Q by V. Now if we talk about the combination of capacitor, then there are two possibilities, right? Either it can be a series combination or it can be a parallel combination, right? So let us talk about the series combination first. Series combination of capacitors, right? So as we know, in series combination, one capacitor is connected to the next, then after second is connected to the next, third is connected to the fourth. So it forms one series. They all are in Q, right? So if I want to show this by some circuit diagram, then let us consider that this is one capacitor number 1. Then after we have another capacitor. Then after let it be two capacitor right now, as of now, right? Okay, now let us say this is C1, this capacitor is C2. इसका मतलब क्या है? C1 और C2 का मतलब क्या है कि their capacitance are different. ऐसा हो सकता है कि C1 is 10 माइक्रोफैराड है और C2 है वो 20 माइक्रोफैराड का है, right? So their values are different. Now let us consider that the plate, left side plate of the C1 is positively charged. Okay, इसका मतलब है कि दूसरे वाली साइड पे जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, right? And over here the charge which is stored in the plate of the capacitor is to be denoted by Q. Same way over here, if we have a C2 capacitor, so over here let us say this is also positively charged. Over here let us say this capacitor is negatively charged, and this capacitor is also having charge equals to Q. तो आप बोलोगे कि मान लो कि अगर यहाँ पे Q1 है, मतलब the charge which is different from C1, is it possible? No, it is not possible. क्यों नहीं है possible? मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों के चार्जेस है वो डिफरेंट है, and there is no connection. इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. एट दैट टाइम द चार्जेस आर Q and Q1, राइट? सो दिस इज पॉसिबल, बट एज सून एज यू आर गोइंग टू मेक दिस कनेक्शन, तो ये कनेक्शन किससे बनता है? ये तो सिंपल कंडक्टर है, सिंपल एक वायर है, राइट? इसका मतलब क्या होगा कि if there is an inequality of the charge, अगर इन दोनों के बीच में कुछ inequality रहेगी, then the charges will start moving from positive to negative. Okay, and then after there will be a time that they are balanced, right? तो अगर ऐसा है तो भी after few microsecond again the charges on both the capacitor will be Q only, right? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है. Another thing is, say when we are going to talk about the potential difference of each and every individual capacitor, right? तो मान लो कि मैं इस पॉइंट को A बोलता हूँ, इसको हम B बोलते हैं और इसको हम C बोलते हैं. So the potential difference between the point A and B, I am denoting it with A. A क्यों है? Because we are using subscript 1 for the first capacitor. तो इसलिए potential difference across the first capacitor is to be denoted by V1. Then after we have another capacitor, और इसके लिए दूसरे capacitor के लिए जो potential difference है वो मैं दिखा रहा हूँ V2 से, right? Now the total potential difference, मतलब के जो दो end terminal है A और C, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं दिखा रहा हूं V से, राइट?
as we know in series combination the total potential difference is equals to sum of the individual potential differences. So what I should write now? You should write this V equals to V1 plus V2, right? V equals to V1 plus V2. So in this case, if I want to find out the value of V1, then from this equation I can say that V can be given as Q by C, right? तो अभी V1 के लिए लिखना है, तो V1 के लिए क्या लिख सकते हैं? Q by C1 लिख सकते हैं। क्यों यहाँ पे हम Q1 नहीं लिख सकते? As I told you, the कैपेसिटर, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर है सभी के पास दोनों प्लेट के बीच में Q जितना इक्वल चार्ज ही होगा, ओके? The charge will be same. Charge will be same in each and every capacitor, and that is Q only, capital Q only, right? तो ये क्वांटिटी है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में फिक्स रहती है, ये वाली क्वांटिटी, राइट? ओके, प्लस V2. So V2 can be given as Q by C2, right? हो गया? Now as we know यहाँ पे V है, ओके, let it be V, ओके, फाइन, ओके, इसमें से हम Q कॉमन निकाल सकते हैं, Q कॉमन निकाल के यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं, so V by Q can be given as 1 upon C1 plus 1 upon C2, right? Okay, now what if I can represent this combination of two capacitors, series combination of two capacitor with a single capacitor which is to be denoted by C. ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल C है, ये दो कैपेसिटर की जगह मैं उसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे V by Q वो हो जाएगा 1 upon C, right? It will be 1 upon, sorry, V by Q, so that is equals to 1 upon C, right? That can be given as 1 upon C1 plus 1 upon C2. तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन. That means 1 upon C equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. ये किसके लिए आ रहा है? हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. अगर आपको रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन याद हो तो उसमें रिजल्ट आ रहा था 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. तो कैपेसिटर और रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंट है. रजिस्टर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है वही रिजल्ट, वही इक्वेशन यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का होता है, राइट? तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है. देयर इज अ गारंटी दैट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स तो मिल ही जाएंगे और वो पूछे जाते हैं, राइट? सो यू शुड हैव गुड कमांड फॉर दिस टॉपिक, और इसके बेस जो भी न्यूमेरिकल है उस पे आपका कमांड होना ही चाहिए, राइट? नाउ इफ वी हैव मोर देन टू कैपेसिटर, मान लो कि अभी हमें इक्वेशन डिराइव करना है फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है सो आप इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखा सकते हो. सो लेट अस से दिस इज C1, C2, C3 एंड द लास्ट वन इज द Cn. मुझे इस पूरे के पूरे सीरीज को एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस करना है which is known as the equivalent कैपेसिटर. देखो यहाँ पे जो ये C है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर या फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, राइट? तो आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है. सो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, राइट? यहाँ पे आपको क्या चेंजेस करने हैं? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn लिख दो आप, राइट? फिर आप लिखोगे V इक्वल्स टू Q by C1 प्लस Q by C2 डैश 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 Q by Cn, the last capacitor, right? And from this again you can write down 1 upon C equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 dash 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 1 upon Cn. तो अगर ये आता है तो obviously you can do this, right? There is not a big deal, right? ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया, right?
Now let us talk about the next one, that is the parallel combination of the capacitor. तो अब बताओ अभी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसी भी चीज का, वेदर इट इज रेजिस्टर और अ कैपेसिटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसमें. सो लेट अस डिस्कस. पैरेलल combination of capacitors. Okay, so parallel arrangement, that means let us say this is capacitor 1, okay, and then after we have another capacitor और दोनों के रिस्पेक्टिव टर्मिनल है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किए थे, राइट, एंड आई कैन मेजर द वोल्टेज ओवर हियर, राइट. ये हो गया C2, राइट. तो इसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है. बट आई आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हैपेंस और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. तो देखो यहाँ पे मान लो कि वोल्टेज अक्रॉस द C1 इज, आई एम जस्ट डिनोटिंग इट विद सपोज V1, राइट. यहाँ का जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैं V2 से दिखा रहा हूँ. बट एज यू कैन सी ये टर्मिनल A या फिर टर्मिनल B बोलो या टर्मिनल C बोलो, ये एक वायर है और वायर पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है. दैट मींस A बोलो, B बोलो या C बोलो, सभी जगह पे पोटेंशियल है वो सेम है. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर D, E और F, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज सेम for each and every individual capacitors, right. तो इसमें चेंज क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, राइट. तो डिफरेंट होता है वो है चार्ज, राइट. if this capacitor is carrying a charge q1, then it may be possible that another capacitor may carry different charge, let us say it is q2. और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे चार्जेस है, टोटल चार्जेस है, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ इस इक्वेशन से. टोटल चार्ज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर आई हैव डिनोटेड इट विद Q. सो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे मैं Q कैन बी गिवन एज CV, राइट. सिमिलरली Q1 कैन बी गिवन एज, देखो यहाँ पे V है वो नहीं बदल रहा है, V है वो एज इट इज है, तो आप लिखोगे C1V और Q2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, इट इज C2V, राइट. तो इन सब का हम यूज करते हैं अभी. सो CV इक्वल्स टू Q1 की जगह लिख रहे हो आप C1V प्लस आप लिख रहे हो Q2 की जगह पे C2V. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट V है वो कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो आप क्या लिख सकते हो, C कैन बी गिवन एज C1 प्लस C2, राइट. सो इट इज वेरी इजी. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको जितने भी कैपेसिटर्स है उनका एक सिंपल एडिशन करना है, बस बात खत्म, राइट. What happens if you have n number of capacitors, right? If you have n number of capacitors in parallel combination, जैसे कि यहाँ पे हम और कैपेसिटर्स ड्रॉप यहीं पे कर देते हैं. लेट अस से ये हो गया C3, देन आफ्टर द लास्ट कैपेसिटर इज सपोज Cn. तो इसके लिए क्या होगा, देन यू मेक द चेंजेस ओवर हियर कि ये हो जाएगा Qn, राइट. ओके, ओवर हियर this will be equals to Cn into V. फिर आप फिर से V कॉमन निकालोगे और यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो होगा up to Cn. So if we have n number of capacitors, then you can again add them. आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड करना है if you have n number of capacitors in a parallel combination. So it is very easy, right? So this was very easy topic, कुछ नहीं था इसमें, right? But इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो काफी ट्रिकी होते हैं.
कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट में साथ में दिए जाते हैं, सो एट दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस इट वेल, राइट। तो प्रैक्टिस इट वेल, आपको दो इक्वेशन ही याद रखने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो आप इक्वेशन यूज करोगे ये वाला 1/c = 1/c1 + c2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी गिवन एज c1 + c2, राइट। तो इस तरह से आपको करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू इट वेल, थैंक यू सो मच।